Wednesday and Thursday. Yes. So which means okay, 11th, 12th. Yes. So if we shift it to 16th, then it will be a little late. Will that be fine? 16th we'll have then. Will that be fine? 16th is Monday. What about you other students? Okay, sir. Sir, Okay, sir. 16th is Bhai Dooj, so sir, can you Sir, post? 17th or 18th. See, like that it will stretch. You give quiz for 15 minutes. How much time? Those puja will be. Hello, can you hear me? Yes, sir. What time your Baidu's puja will be? In the evening or in the morning? So just for 15 minutes, you can take up that, right? So prepare before that. चलो ठीक है 17 को रख लेते हैं ठीक है 17th Okay, sir. ठीक है इज दैट फाइन फॉर ऑल Yes. Yes, sir. Yes, ठीक sir. Yes, Yes, sir. ठीक अभी सब लोग बोल रहे हो चलो 17th विल कीप सो क्विज 3 विल बी ऑन 17th just a minute okay so today I will send you all the reading material I could not send so today will be the last class for routing chapter of WSN okay so have you gone through TEAN protocol again everyone is silent hello students see you should not wait for your professor to discuss in the class you should be walking keep walking you are a master student हम लोग जब मास्टर स्टूडेंट्स थे तो उस समय क्लास होता ही नहीं था एंड वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी अगर कोई क्लास होता भी था तो टीचर आते थे 10 मिनट बस 1 घंटे के क्लास में 10 मिनट में 10 सवाल करेंगे कोई आंसर नहीं दे पाएगा क्लास क्लोज्ड एंड करीब 50 पेज का पकड़ा देंगे बोलेंगे ये पढ़ना खुद बस दैट इज द पनिशमेंट फॉर नॉट एबल टू आंसर 10 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस और टीचर बुलाते थे शाम को क्लास होगा 7 बजे बस वेट करते करते 8:30 बज जाता था मेस बंद हो जाएगा सोच के डर के मारे खाना खाने चले जाते थे टीचर नेवर यूज्ड टू कम बैक सो खुद पढ़ना सीखो तभी जाके चीजों को खुद एक्सप्लोर करोगे आगे बढ़ोगे इफ यू आर डिपेंड दिस नॉट ए क्लासरूम लाइक स्कूल जैसा पढ़ाना कॉलेज जैसा पढ़ाना अंडर ग्रेजुएट जैसा नहीं है खुद को पढ़ना पड़ेगा वंस आई से दैट इट इज सेल्फ स्टडी तुम्हें उसी दिन ही कंप्लीट करना है नोट्स बनाना है तभी जाके आगे बढ़ पाओगे अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट यू नो इन द लास्ट yesterday the PhD admissions concluded there were 97 applications आप सुन रहे हो there were 97 applications and every candidate had good gate score और net score इस तरह का ठीक है और 97 में से शॉर्टलिस्ट होकर करीब 48 आया वो 48 में से रिटर्न क्वालिफाई किए केवल 22 और 22 में से केवल सिलेक्शन हुआ 5 जस्ट सी 97 से 5 सिलेक्शन हुआ फाइनली so point of my giving this example is that you need to be very careful very alert
very prompt, very smart, ठीक है, in completing the task on time. Okay, sir. तो अगर प्रोएक्टिव नहीं हो गए तो you will be lost. So you will have a master's degree but no job to do. Maybe a software job or maybe a public sector job or maybe a PhD, anything. Job means in general मैं बता रहा हूं. तो बच्चों तुम लोगों को ऑनेस्टली काम करने से अपने आप कॉम्पिटिटिव बन जाओगे. कॉम्पिटिटिव बनने के लिए कोई स्पेशल हुनर की जरूरत नहीं है, बस एक डिसिप्लिन होना है कि आज का काम आज खत्म करना है मुझे, या ज्यादा से ज्यादा कल तक. ये चीजों को थोड़ा सीरियसली लो, ठीक है. ओके, सो we will discuss a little bit about the location based routing protocols. तो जो पिछले बार हम नेक्स्ट क्लास में बताए पढ़ेंगे सोचे थे वो हो नहीं पाए. So today we will do that. I think this machine also has forgotten me. Okay, that's fine. Okay, so location based routing protocol. Now we need to understand what is location based routing protocol and why is it required, right? Location based routing protocols are basically sending the data, right? Basically to send data, okay, to a targeted region, right? What does this mean? Why do we say that data is to be sent to a targeted region? Earlier, if you recall, there were flooding mechanism, right? There's a flooding mechanism. या जैसे हमने पढ़ा, हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आई आस्क्ड यू टू गो थ्रू डायरेक्टेड डिफ्यूजन. डायरेक्टेड डिफ्यूजन मतलब कि एक पॉइंट पे जाकर वहां डिफ्यूज होगा, राइट? इट्स अ काइंड ऑफ फ्लडिंग. डायरेक्टेड डिफ्यूजन एंड फ्लडिंग, फिर हियरार्किकल फ्लड, ये सब में क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन तुम्हारा हर जगह ऐसे ऐसे जा रहा है, राइट? सो इंफॉर्मेशन इज ब्रॉडकास्टिंग. तो ब्रॉडकास्टिंग से क्या होता है कि lot of energy is wasted and already the resources is a constrained resource environment, so we need to use the constrained resource resources judiciously. ठीक है? तो इसमें देखा गया कि क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रहा है नोड्स की, क्योंकि सारे नोड्स will be receiving and forwarding, will be busy in receiving, forwarding and transmitting their own data, right? So the nodes major part of the energy was consumed due to transmission, receiving and listening to channel scenarios, right? समझ में आया? So what was thought that why can't we restrict the flooding and make the nodes use their energy whenever there is required. So जब हम ये बोलेंगे तो आपको याद है हम लोग ड्यूटी साइक्लिंग भी पढ़े थे, राइट? ड्यूटी साइक्लिंग क्या था? ड्यूटी साइक्लिंग was making the nodes sleep and wake up according to the timing given to the nodes. तो इससे क्या फायदा हुआ ड्यूटी साइक्लिंग से कि the nodes did not have to listen to the channel continuously for a long period, for the entire duration. Rather, selectively, जब भी उनका टाइम स्लॉट आएगा उसी दौरान बिगिनिंग पे वो लोग वेकअप होंगे और जैसे उनका खत्म हो जाएगा they will go to sleep, right? So इस तरह का ड्यूटी साइक्लिंग से आपका एनर्जी कंजर्व हुआ नोड्स का. दूसरा क्या हुआ कि इसके बावजूद भी क्या हुआ कि फ्लडिंग के चलते एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो पाया, यानी कि
एनर्जी कंज्यूम ज्यादा होने लगा, बिकॉज एवरी नोड विल बी एंगेज्ड इन रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग, ठीक है, वेदर दे रिक्वायर और नॉट। सो उस चीज को भी कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया कि सेंड द डेटा टू ए टारगेटेड रीजन। इसको हम किस तरह देखेंगे कि जैसे यहाँ पे सोर्स है, सोर्स है, सोर्स से अगर मुझे एक रीजन पे, तो ये अगर मान लो कि ये एक सेंसर नेटवर्क हुआ या कोई भी एक नेटवर्क हुआ, ठीक है, ये एक नेटवर्क हो गया, नेटवर्क। तो इसके अंदर मुझे अगर इस रीजन पे अगर डेटा भेजना है, इफ आई नीड टू सेंड data from source to this target region, okay, so I'll say that this is target region. What I used to do earlier, I used to flood this data, flood this information from source, and finally it used to reach the destination, the target region. But in this process, what was happening, that all these nodes were engaged in forwarding, receiving and forwarding the data towards the targeted region. So ऐसे कुछ nodes होते थे which can be restricted or which can be made not to get involved in this forwarding of data from source to the target region. तो इससे फायदा क्या होगा कि जो nodes को हम प्रिवेंट किए फॉरवर्ड नहीं करने के लिए, उन सब का एनर्जी बच गया, राइट? इसका मतलब ओनली ए सबसेट ऑफ नोड्स आर एंगेज्ड इन फॉरवर्डिंग द डेटा फ्रॉम सोर्स टू द टारगेट रीजन। क्लियर? I repeat, only a subset subset nodes, okay, only a limited nodes are now engaged in forwarding the information from source to target region. So बाकी जो nodes हुए उनका energy बच गया। That is how the location based routing protocols while trying to send the data to target region by through only a limited number of nodes are able to conserve energy. ठीक है स्टूडेंट्स? Yes, sir. अच्छा, क्या आप ये विजुअलाइज कर सकते हो कि किस तरह का इंफॉर्मेशन है ये इस तरह का जो लोकेशन बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल कहाँ यूज होता है? आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि for example, I will send the source will send a query to know the current temperature. This is just an example, temperature in the target region, ठीक है? तो जब ये क्वेरी जाएगा, so this query is intended for the target region. Now the question is that which path should the query will take? Which path the query will take to reach the target region? ठीक है? तो इसके लिए ऑप्शन क्या है कि वन ऑप्शन है कि इस क्वेरी को तुम ब्रॉडकास्ट कर दो कि जितने सारे नोड्स है इस फील्ड में, नेटवर्क में, सारे रिसीव करेंगे और फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो what will happen? There will be a number of redundant queries circulating in the entire network. So इससे क्या होगा? Number of redundant query के चलते unnecessary transmissions होंगे, channel resources unnecessary consume होंगे, ठीक है? पैकेट ड्रॉप बढ़ जाएगा, नोड्स का एनर्जी ज्यादा खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, एंड द नेटवर्क विल कोलैप्स बिकॉज ऑफ, नेटवर्क का जो लाइफ टाइम होगा वो कम हो जाएगा, राइट? सो एंगेजिंग मोर नंबर ऑफ नोड्स और ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क टू फॉरवर्ड ए क्वेरी फ्रॉम सोर्स टू द टारगेट रीजन is disastrous in terms of delay, in terms of packet drops, in terms of network lifetime, in terms of energy consumption, and so on and so forth. That is why it is good to send the query
from source to the target region using a subset of nodes. Clear? Yes. So send the query using a subset of nodes to the target region. तो ऑब्वियसली क्योंकि ये सबसेट ऑफ नोड्स ही एंगेज्ड है, तो रिसोर्स जो कंस्ट्रेंट रिसोर्सेस है उनका भी कंजम्पशन कम होगा. तो सबसेट ऑफ नोड्स help in reducing the usage of constrained resources. ठीक है? Constrained resources. So that is the motivation of geographic based routing, via location based routing. ठीक है? So we will study one such routing protocol is as GEAR, which is geographical and energy aware routing protocol. ठीक है? GEAR, geographical and energy aware routing protocol. So जितने सारे लोकेशन बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, what information they use to determine the route? What information do they use to determine the route? One is the location information, और दूसरा है कि एनर्जी इंफॉर्मेशन, राइट? दूसरा हो गया एनर्जी इंफॉर्मेशन. So when we say location information, we mean the geographic location of each node. इसका मतलब we are assuming that the nodes have some device incorporated in them to know their location, geographical location, यानी कि coordinates. ठीक है? उसका कोऑर्डिनेट अगर 2D स्पेस पे है तो 2D कोऑर्डिनेट, या 3D पे है तो 3D कोऑर्डिनेट, राइट? 3D कोऑर्डिनेट. तो लोकेशन इंफॉर्मेशन यानी कि कोऑर्डिनेट्स पता हो, और एनर्जी इंफॉर्मेशन यानी कि हर नोड पे कितना एनर्जी बचा हुआ है. एनर्जी मतलब उसका बैटरी कितना बचा हुआ है, हाउ लॉन्ग इट कैन सस्टेन, यानी कि इन टर्म्स ऑफ जूल. एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल. ठीक है? हाउ मनी जूल्स इट ऑफ एनर्जी एवरी नोड हैज, एंड व्हाट इज the location or the coordinate of each node. तो गियर प्रोटोकॉल क्या करता है कि ये दो चीजों को इनपुट लेता है, इन दो चीजों को टेक्स एज इनपुट लेते हुए वो रूट को डिटरमिन करता है. ठीक है? रूट को डिटरमिन करता है. सो ये करने के चलते क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ ट्रांसमिशन है वो काफी कम हो गया. टेक्स एज इनपुट टू reduce the number of transmissions. कैसे ये हो रहा है? to reduce number of transmissions, कि जो लोकेशन इंफॉर्मेशन है ये हमें बताता है कि डायरेक्शनलिटी सेंस बताता है कि हमें जो टारगेट रीजन है उस टारगेट रीजन की तरफ हम जा रहे हैं कि नहीं. ठीक है? तो दैट वे
what we are doing is we are restricting or we are focusing towards the target, thus by disengaging the nodes which are away from the target. समझ पाए? तो हम एंटायर नंबर ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क को दो हिस्सों में बांट देते हैं, वर्चुअली में बता रहा हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि एक हिस्सा, एक सेट ऑफ नोड्स जो है, एक सबसेट ऑफ नोड्स है, वो है जो कि हमें टारगेट लोकेशन तक पहुंचा देगा, और दूसरे नोड्स है जो इररिलेवेंट नोड्स है। ठीक है, तो जो इररिलेवेंट नोड्स है उनको ट्रांसमिशन करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, दैट इज व्हाई the network the constrained resources are conserved. ठीक है, पहली बात ये हो गया। दूसरा क्या हो कि एनर्जी इंफॉर्मेशन, why energy information is required? Because if a node is having less amount of energy with it, and if that node is chosen to be a part of that route, then what will happen? The node in that route will die or will exhaust its resource energy completely, and thus that route will not be a valid route anymore. Energy of the nodes towards the target region. So we are considering, or the gear protocol considers, both the location information of the nodes and remaining energy or residual energy information of the nodes to estimate the route. Okay, it takes these two input parameters to estimate the route. So gear operates. Any questions, students, so far, or anywhere you could not understand? सर ये एनर्जी वाला पॉइंट वापस बता दीजिए। Energy is basically the residual energy. Is the residual energy. जब नोड इनिशियली क्या होता है कि नोड, सो इनिशियली node will have full energy. Node has full energy, right? Full residual energy. Residual energy मतलब कितना बचा हुआ है. Initially every node will have full residual energy. तो over a period of time, मतलब कि जब वो कम्युनिकेशन करने लगेंगे, ट्रांसमिट रिसीव करने लगेंगे, तो ये जो फुल रेसिडुअल एनर्जी वो डिप्लीट होगा, राइट? ये अगर हम टाइम लेंगे और ये अगर हम एनर्जी लेंगे तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? एनर्जी कम होता जाएगा, राइट? है कि नहीं? तो दिस इज इनिशियल एनर्जी, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? कम होकर ये हो जाएगा। सो हमें हर नोड का एनर्जी, रिमेनिंग एनर्जी कितना है देखना पड़ेगा। इस टाइम पे अगर मैं प्रोटोकॉल रूट निकालना चाह रहा हूं तो इस टाइम पे क्या एनर्जी है देखना पड़ेगा ये। ठीक है, व्हाट इज दिस? इस टाइम पे देखूंगा तो क्या एनर्जी है ये देखना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल एनर्जी। हर टाइम इंस्टेंस पे रेसिडुअल एनर्जी क्या है ये देखना पड़ेगा। अगर मैं ना देखूं और रूट को सिलेक्ट कर लूं तो क्या होगा कि इस रूट पे मान लो कि ये रूट है, ये x1 नोड, x2 नोड, x3 एंड x4, मान लो कि दिस इज द रूट। सो दीज आर द नोड्स along the route, अगर ये x2 नोड्स एनर्जी, रेसिडुअल एनर्जी इज टू लो, ठीक है, टू लो, तो क्या होगा कि x1 से x4 जो तुम्हारा रूट है ये इसके चलते ब्रेक हो जाएगा, राइट? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? यस सर। Did you understand? यस सर। So that's why residual energy information is very important for the sustainability of the route. ओके सर। Right? Okay. So
So gear uses energy information and geographically informed neighbor selection mechanism, right? So gear uses energy info and geographical information, ठीक है, of neighbors to select the route for forwarding the packet to the target region. ठीक है, कोई क्वेश्चन यहां तक? No, sir. Okay. So it works in two steps or two phases, you can say. So phase 1 में क्या होता है कि it maintains estimated cost. Estimated cost मतलब कि this is the cost for reaching to the target region. Estimated cost. It is the cost for reaching to the target region. So estimate cost includes what? It includes the residual energy and, or I can say residual energy plus the distance to target region. ठीक है, so this distance is nothing but the hop distance, क्योंकि जितना कम हॉप होगा उतना कम ट्रांसमिशन रिसेप्शन होगा और उतना कम एनर्जी खर्च होगा. तो सो एस्टिमेटेड हर नोड जो क्या करता है, जो सोर्स मान लो कि सोर्स जब टारगेट तक भेजना चाहता है तो इट फर्स्ट एस्टिमेट्स और इट मेंटेन्स एस्टिमेटेड cost, and that estimated cost is nothing but the residual energy of all the nodes falling in that route plus distance to. अभी रूट डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब कि उसका जो नेबर्स है वो नेबर्स का रेसिडुअल एनर्जी एंड उन नेबर्स को फॉलो करते हुए टारगेट रीजन तक पहुंचने के लिए जो ये होगा, दैट इज कॉल्ड द एस्टिमेटेड कॉस्ट. ठीक है, इट मेंटेन्स एन एस्टिमेटेड कॉस्ट. देन एक होता है लर्न कॉस्ट, दूसरा होता है द लर्न कॉस्ट. एक होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट और दूसरा लर्न कॉस्ट. ठीक, लर्न कॉस्ट क्या होता है? सो दिस इज द रिफाइनमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट, व्हिच इज नथिंग बट द रिफाइनमेंट ऑफ the estimated cost. What do you mean by this refinement and why it is required? What is this refinement? Refinement इसलिए जरूरत होता है. Refinement क्या होता है? Why we need to refine? Because क्या हो सकता है कि एक होल का कॉन्सेप्ट है, right? So the concept of hole. What is this hole? Hole is nothing but कि जब हम टारगेट रीजन के पास जाते हैं, let's suppose this is a target region, okay? So this is a target region with centroid, let's suppose x. ठीक है, टारगेट रीजन में सेंट्रोइड x. तो ये हो गया सेंट्रोइड और ये हो गया x और इसके चारों तरफ तुम्हारा ये हो गया टारगेट रीजन. ठीक है, ये हो गया टारगेट रीजन. अब ये हो गया तुम्हारा सोर्स. अब सोर्स से जब टारगेट रीजन की तरफ जा रहा है तो कई सारे पाथ्स हो सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूं. कई सारे नोड्स है नेटवर्क में, ठीक है. सो कई सारे नोड्स है नेटवर्क में, राइट, कई सारे नोड्स है. सो this source has to forward
or to have a route from itself to the centroid of this or anywhere in the within the target region. ठीक है, तो जब ये नोड, मान लो कि ये नोड पे पहुंच गया, let's suppose this is the node, this is the nearest node, nearest node to the nearest node to the to x, let's suppose nearest node to x, या कोई भी नोड हो जहां पे पहुंच सके. तो ये क्या हुआ, ये right? So when there are no neighbor nodes closer to the destination, when there are no neighbor nodes close to the destination, what which means जितने सारे neighbors है वो सारे ये जो टारगेट पॉइंट है यहां से दूर पे है, यहां से दूर पे है. तो क्या होगा, एक होल क्रिएट होगा. इसका मतलब कि होल इज क्रिएटेड व्हेन ए नोड डज नॉट हैव एनी नेबर क्लोज टू द टारगेट रीजन देन इटसेल्फ. तो यहां पे होल क्या हुआ बच्चों, होल क्या हुआ, when a node does not have any other node closer to the target region other than itself. समझ पाए बच्चे, समझ पा रहे हो? When a node does not, I repeat, when a node does not has any other node, does not have any other node to the target region other than itself, तब वहां पे होल होगा. मतलब कि टारगेट रीजन को पहुंचने के लिए उस नोड के सिवा कोई और नोड है नहीं. सर देन सर हमारी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी कि हम सोर्स से डायरेक्टली एक्स पे पहुंचेंगे. नहीं, यही तो बता रहे हैं ना कि ना 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 देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि होल क्या होता है कि when a node does not have any other node to reach the target other than it, मतलब कि ये जो मैं नियरेस्ट नोड टू एक्स जो किया है, राउंड किया ना, सर्कल किया. यस सर, यस सर. तो अगर इफ दैट इज द ओनली नोड अवेलेबल टू रीच एक्स, तो वो जो नोड हो गया तुम्हारा क्या, वो होल हुआ. मान लो कि उस नोड अगर उस नोड का डेथ हो जाता है, होल क्रिएट हो जाएगा. हाँ, होल क्रिएट हो जाएगा. अगर वो नोड का डेथ हो जाता है तो मेरे पास एक्स तक पहुंचने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है. ओके सर. तो उस चीज को हम होल कहेंगे. ठीक है, तो ये क्या, यहाँ क्या करता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो रिफाइनमेंट का जो बात हम कर रहे हैं, रिफाइनमेंट मतलब कि पहले एक रूट तो हमारा निकल चुका था फर्स्ट स्टेप में, एस्टिमेटेड कॉस्ट में. ठीक है, लेकिन उस एस्टिमेटेड कॉस्ट के रूट में, पाथ में, अगर ऐसा कोई नोड हो जो कि बार बार यूज हो रहा है और वो अगर उसका एनर्जी अगर डिप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज को भी हमें ध्यान में ना रखते हुए हम अगर पैकेट फॉरवर्ड करेंगे टुवर्ड्स डेस्टिनेशन, तो क्या होगा कि अगर वो नोड खत्म हो जाता है, then the data cannot reach to the targeted region. इसीलिए learning is required in addition to the estimated cost. So we can say कि estimated cost अगर T1 टाइम पे अगर हो रहा है, तो learned cost जो होगा which will be different from the estimated cost at T1 plus T2 या T2 मान के चलो. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर. एनी क्वेश्चंस इस टॉपिक पे? होल क्या है? when there are no neighbor nodes closer to the destination. When there are no neighbor nodes closer to the destination, that is, all neighbors are farther away from the destination, we say a hole is identified. In other words,
A hole occurs when a node does not have any neighbor closer to the target region except itself. ठीक है? So in this scenario, the learned cost will be combined with an update rule to forward the packet. Circumventing और bypassing the holes करना पड़ेगा कि नहीं? अगर उस होल्स को अगर हम बाईपास, पहले तो होल आइडेंटिफाई करेंगे, अगर वो होल है तो उसको हमें बाईपास करना पड़ेगा, तभी तो हम वो जो रूट निकालेंगे वो सस्टेनेबल होगा कुछ देर के लिए। मतलब कि रिफाइन करना पड़ेगा हमें, जो एस्टिमेटेड रूट जो था, कॉस्ट रूट जो था, उसको हम रिफाइन करेंगे ये होल्स निकालने के बाद। बच्चों समझ पा रहे हो कि मैं फिर से बताऊं और थोड़ा सिंप्लीफाई करके? Sir, all these like estimated cost and land cost will be included in packet. Will be? सर वो पैकेट के साथ इंक्लूडेड रहेगा, मतलब इन्फॉर्मेशन सारी जो हम सोर्स से एक्स की तरफ से। ये बेटा ट्रांसमिशन से पहले रूट डिसाइड होगा ना, रूट डिसाइड, सोर्स से टारगेट रीजन तक जो रूट डिसाइड होगा, रूट डिसाइड करने के लिए ये है एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड लर्न्ड कॉस्ट यूज होता है। ओके सर। होने के बाद, रूट डिसाइड होने के बाद जाके तुम्हारा ट्रांसमिशन होगा, फॉरवर्डिंग होगा, सोर्स से डेस्टिनेशन तक, टारगेट रीजन तक फॉरवर्डिंग होगा। ठीक है? ओके सर। So where does this computation takes place? Like at the source node or at the base station? The computation of estimated cost and learned cost. Yes, source node can be base station. क्योंकि जब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का अगर बात करेंगे तो इंटरनेट से, कहीं से यूजर से मैं क्वेरी भेज रहा हूं, यूजर से क्वेरी भेज रहा हूं, ठीक है? मुझे आई एम रिमोट यूजर, आई एम ए रिमोट यूजर, मुझे क्वेरी भेजना है, तो मैं क्वेरी कहां पे भेजूंगा? बेस स्टेशन पे भेजूंगा, राइट? बेस स्टेशन भेजूंगा। देन दिस बेस स्टेशन विल फॉरवर्ड दिस क्वेरी टू द टारगेट रीजन। दिस क्वेरी will be forwarded by the base station to the target region. So तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि कौन ये क्वेरी को फॉरवर्ड करेगा, that is of course the base station. In a simplistic scenario, it is a base station. अगर हमारा एक composite query होगा तो हो सकता है कि there are some nodes within this network can take a query and they direct. So ये query 1 कर सकता है और ये तुम्हारा query 2 कर सकता है, ठीक है? So this query 1 and query 2 can form a composite query, can form the composite query, right? Yes, sir. So in a complicated scenario, the base station can divide the query into sub queries and send it to different locations, and they further send it to the their respective target regions, or there can be just one query which can be sent to the target region directly. Clear? Yes, sir. Okay. Any other questions? Right? So यहाँ पे हमने क्या देखा कि दो चीज होगा, एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा, फिर लर्न्ड कॉस्ट होगा। So learned cost is nothing but the refinement and that is the final. And refinement phase में क्या होगा कि just to avoid the holes. ठीक? अच्छा, एक बार हमें टारगेट रीजन तक हमें रूट मिल गया, once we get the route till the target region, then what happens? Then the query needs to be, it can be query, it can be data, anything, okay? So the query needs to query or data needs to be disseminated within that region, तो अभी क्या हो गया, रीजन तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, रीजन तक पहुंच गया। अब यहां से हमें सॉरी रीजन तक तो सेंट्रॉइड डी, सॉरी सेंट्रॉइड एक्स, किताब में डी दिया हो, सॉरी से डी, जैसे ओके। सो
So the data has reached here at this point. So from here it will be sent to the regions. I mean to all the nodes in that. It may be in single hop, maybe in multiple hop. ठीक है? So सो फेज 1 में क्या हो गया कि रूट एस्टेब्लिशमेंट, और फेज 2 में क्या हो गया, देख सकते हैं कि फेज 1 फेज 2, अगर हम इस तरह देखें, फेज 1 में क्या हो गया कि रीचिंग टू द टारगेट रीजन, reaching to the target region, and phase 2 में dissemination within the target region. ठीक है? And reaching to the target region involves क्या क्या है कि estimated cost, and the other one is the refinement or learned cost, or refinement of the estimated cost. ठीक है? तो एक बार पहुंच गया टारगेट रीजन तक, तो नाउ द क्वेश्चन इज डिसेमिनेशन विद इन द टारगेट रीजन. So this involves a kind of flooding, और हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन एटसेट्रा. ठीक है? तो बेसिकली इसको, दिस इज नॉट रॉ फ्लडिंग. I should say that this is duplicate suppression, okay, or restricted flooding. Let me say restricted flooding or dissemination. ठीक है बच्चों? सर यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्टेड फ्लडिंग किसको बोल रहे हैं? जैसे फ्लडिंग तो सिर्फ कंजप्शन और बैंडविड्थ को पूरी तरह से फुल तरीके से भर देना, तो यहाँ रेस्ट्रिक्टेड फ्लडिंग क्या होगा? फ्लडिंग में क्या होता है इन जनरल कि देयर विल बी रिडंडेंसी. There will be redundancy in flooding. Yes sir, yes sir. Restricted flooding में क्या होगा कि हम डुप्लीकेट सप्रेशन करेंगे. डुप्लीकेट सप्रेशन मतलब कि एक नोड अगर पहले से अगर रिसीव कर चुका है तो वो फर्दर, समझ पा रहे हो? नो सर, सॉरी. तो एक डुप्लीकेट, ये वाला हम पढ़े थे ना स्पिन प्रोटोकॉल में. यस सर, यस सर. बस उसी तरह. ओके ओके सर, ओके. हाँ, तो हम फ्लडिंग को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. ओके सर. हाँ, क्योंकि फ्लडिंग हमारा एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करता है, वेदर वन नोड रिक्वायर्स और नॉट. इट मैंने हो सकता है कि एक नोड मल्टीपल सोर्स है. देखो मैं तुमको एक तो तुरंत याद दिलाता हूं. अगर ये एक नोड है, अगर ये दोनों जगह से ये आ रहा है, तो ये भी एक्स ट्रांसफर कर रहा है, ये भी, तो क्या ये रिपीटेड है ना ये? यस सर. तो इस रिडंडेंट को हमें क्या, तो ये इसको भी रिसीव करेगा, इसको भी रिसीव करेगा. सो दिस इज कंज्यूमिंग एनर्जी ट्वाइस, 2 टाइम्स एनर्जी कंज्यूम. यस सर. तो इस चीज को हम अगर रोक सकते हैं किसी माध्यम से, देन वी कैन इसको हम वन टाइम कर सकते हैं. ठीक है? सो दैट इज नोन एज रेस्ट्रिक्टेड फ्लडिंग. ओके. ठीक है? तो जब ये जो टारगेट रीजन, इसका 2 वेरिएंट आया. फिर ये जो टारगेट रीजन है, ये टारगेट रीजन कैसे हो सकता है कि एक डेंस हो सकता है, एक स्पार्स हो सकता है. टारगेट रीजन कैन हैव dense deployment
एंड दूसरा स्पार्स डिप्लॉयमेंट। तो डेंस डिप्लॉयमेंट होने से क्या होगा कि जो रेस्ट्रिक्टेड फ्लडिंग या जो भी यूज करोगे दैट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इसीलिए डेंस डिप्लॉयमेंट के लिए उन्होंने क्या किया कि जो टारगेट रीजन है, ये जो टारगेट रीजन है, ये टारगेट रीजन जो है इसको ग्रिड में बांट दिया गया, इसको ग्रिड में बांट दिया गया। ठीक है, सो फोर स्पेसेस में बांट दिया गया। सो दिस इज डिवाइडेड इनटू ग्रिड्स। ठीक है, वर्चुअल ग्रिड्स, लेट मी से वर्चुअल ग्रिड्स, डिवाइडेड इनटू वर्चुअल ग्रिड्स। वर्चुअल ग्रिड करने के बाद क्या हुआ कि अगर ये तुम्हारा ये क्या कहते हैं जो नोड रिसीव किया, ठीक है, आउटसाइड द रीजन से, टारगेट रीजन आउटसाइड रीजन से किया, ये क्या करेगा कि इस ग्रिड के अंदर जो है ये यहां करेगा, फिर एक नोड यहां पे होगा जो इस ग्रिड के अंदर ये करेगा, फिर ये यहां पे होगा। तो क्या होता है कि ये जो फ्लडिंग जो था ये डिवाइड हो गया 4 रीजन में, 4 रीजन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 वर्चुअल ग्रिड्स। ये इन केस ऑफ डेंस डिप्लॉयमेंट में। समझ पाए स्टूडेंट्स? यस सर। जब नोड डेंसिटी ज्यादा है, नोड डेंसिटी हाई है, उस समय इस तरह 4 हिस्सों में बांट दिया गया जिसको हम कहते हैं वर्चुअल ग्रिड्स। तो टारगेट रीजन को 4 वर्चुअल ग्रिड्स में बांट दिया गया और इस तरह विद इन ग्रिड तुम्हारा, तो उसके लिए क्या किया, जो डेटा होगा उसका 4 कॉपी बनाया गया, 4 कॉपी बनाया गया और 4 कॉपी बना के हर एक ग्रिड में बांट दिया गया और उस ग्रिड के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। So basically the big area, big target region is divided into regions. तो इसको कहते हैं रिकर्सिव फॉरवर्डिंग एंड स्प्लिटिंग प्रोसेस। ठीक है, डेंस डिप्लॉयमेंट में क्या हुआ कि रिकर्सिव यूजेस रिकर्सिव एंड स्प्लिटिंग, रिकर्सिव फॉरवर्डिंग एंड स्प्लिटिंग, recursive forwarding and splitting process। तो splitting process क्या हो गया, ये जो हो गया dividing into 4 virtual grids। ठीक है, और recursive forwarding वो हो गया कि till all the nodes, ठीक है, कोई क्वेश्चन? स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन? What about others? No, sir. No, sir. Okay. So high density केस में इस तरह स्प्लिटिंग मैकेनिज्म फॉलो किया गया और स्पार्स डिप्लॉयमेंट में इट्स ओके एज इट इज, जैसे हमने यहाँ पे देखा था ये वाला, ये इस तरह, ये स्पार्स डिप्लॉयमेंट में इस तरह फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये जो फ्लो डायग्राम है इसको थोड़ा याद कर लेना, समझ लेना, तो द होल थिंग विल बी, ऑल एंटायर प्रोटोकॉल विल बी कैन बी रिमेम्बर्ड। सर यस प्लीज। सर रिकर्सिव फॉरवर्डिंग में हाँ, नोड का एनर्जी खत्म नहीं होगा क्या? अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि नोड का एनर्जी पूरा ही खत्म हो जाए। इसीलिए तो देखा गया है ना, इसीलिए एनर्जी को, रेसिडुअल एनर्जी को कंसीडर किया जा रहा है कि अगर कोई, देखो हर जो नोड होता है उस नोड का एक थ्रेशोल्ड मेंटेन किया जाता है, मेंशन किया जाता है कि इस थ्रेशोल्ड से अगर कम एनर्जी आ जाए उस नोड का, तो उस नोड को फर्दर यूज नहीं करना है, उस नोड को या तो बैटरी रिप्लेस करना है
या उसको रिचार्ज करना है, जो भी करना है, तो नेटवर्क में पार्टीशन ना होने के लिए दैट इज एन इंडिकेशन। तो हर नोड के पास एक थ्रेशोल्ड सेट किया जाता है कि उस थ्रेशोल्ड से नीचे, उस थ्रेशोल्ड के पास जब उसका रेसिडुअल एनर्जी आ जाएगा तो उसको फर्दर यूज नहीं किया जाएगा। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि फॉरवर्डिंग कंटिन्यूअसली अगर होता रहेगा तो उसका एनर्जी खत्म होकर वो उसका डेथ तो नहीं हो जाएगा। यस, आंसर यस है। अगर ये रेसिडुअल एनर्जी थ्रेशोल्ड इंफॉर्मेशन मिलने के बावजूद भी अगर मैं उसको यूज करता जाऊं तो ऑब्वियसली वो खत्म हो जाएगा। यस, योर आंसर इज, योर आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए तो हम रेसिडुअल एनर्जी को इनपुट पैरामीटर की तरह ले रहे हैं, लेके ये डिसाइड कर रहे हैं कि जब भी कोई नोड ऐसा होगा जो कि इस थ्रेशोल्ड, सेट थ्रेशोल्ड के आसपास ऑपरेट कर रहा है, तो हम उसको उसमें शामिल नहीं होने देंगे। उससे सर प्रॉपर डेटा चला जाएगा? अरे भाई, वो जो उस नोड को अगर हम कंसीडर नहीं करेंगे और दूसरा कोई रूट अगर हमें मिल रहा है तभी तो डेटा जा पाएगा। अगर रूट ही नहीं मिल रहा है कोई भी तो डेटा जाएगा ही नहीं। ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल, रूट इज नॉट पॉसिबल, सो ट्रांसमिशन कैन नॉट हैपन। सिंपल। Are you getting? Data forwarding can happen only when the route exists, and the route will exist only when the nodes falling in that route have sufficient energy to carry out that forwarding. समझ पा रहे हो? हेलो, समझ पा रहे हो? यस सर। यस। तो अगर एनर्जी होगा ही नहीं उन सारे नोड्स में, जो रूट हम चुने हैं, तो उस तरह से होगा, फॉरवर्डिंग हो ही नहीं पाएगा। थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई एक नोड का डेथ हो जाएगा, सो रूट जो चुने हो that will be no more valid, so data forwarding along that route cannot happen. That's it. तो data forward होगा ही नहीं। क्लियर? तो इसका और टेक्निकल एस्पेक्ट थोड़ा डिटेल में स्टडी करो तो थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और कोई सवाल? स्टूडेंट, any questions? No? No sir. Right. So हम लोग 17th को क्विज 3 रखेंगे। ठीक है? Okay sir. Right. Yes, sir. Okay. So I will be sending the reading material to you today. Okay. Bye.